Good morning, good afternoon, good evening to everyone. So in today's class, we'll proceed with a one-shot revision of ADAS chapter, which is quite a difficult and interesting one. In this chapter, we have 3 units. इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कोई चैप्टर में कोई एनसीईआरटी में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोल के एड्रेस किया जाता है, एडीएएस बोल के एड्रेस किया जाता है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न, दिस इज अ 3 unit chapter, ADAS, investment multiplier, and excess demand and deficit demand. So in today's class, in today's video, we'll cover all the 3 units in this 1 hour class, or whatever the period will be, whatever the time will be. And the most important thing is, this is a revision class and I'll try my level best कि अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी टच किया है तो by completing this video you will able to complete these 3 units. And this 3 unit is very important because this whole 3 chapters consist 10 to 12 marks in your CBSE board exam. So let's start without wasting the time. Okay, so I'm sharing my handwritten notes with you all. This is my manual written notes prepared by me specifically. So let's start without wasting the time. So the first topic, the name of the chapter is aggregate demand and aggregate supply. In some of the books you will get this chapter by the name theory of income and employment, but इसको पढ़ेंगे आपके CBSE board के according. This chapter name, the first chapter 7 in your book. Chapter 7 is aggregate demand and aggregate supply. The first 4 chapters of national income, then the next 5 and 6 will be money and banking, and the chapter 7 AD and AS. So what is the meaning of aggregate demand? In class 11 we have learned the concept that demand is something जो आपके want को पूरा करे, which is backed by your purchasing power. अगर आपको कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, उसके खरीदने का purchasing power if you have, that particular quantity or that particular thing will be considered as your demand. इतना तो हम लोगों ने पढ़ा था. अब एग्रीगेट डिमांड अगर बोला जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड एज इन द टोटल डिमांड. टोटल डिमांड, एग्रीगेट वर्ड का मतलब ही होता है टोटल. तो टोटल डिमांड, बिकॉज वी आर रीडिंग दिस थिंग इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो एग्रीगेट डिमांड मीन्स पूरे इकोनॉमी के डिमांड को अगर टोटल करके अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड. तो डिमांड, अगर हम लोग क्लास 11 में जो हमने डिमांड पढ़ा था, दैट डिमांड इज नोन एज इंडिविजुअल का डिमांड, बट जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो होगा ओवरऑल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से. पूरा ओवरऑल इकोनॉमी के डिमांड को अगर एड ऑन कर दिया जाए, दैट इज कंसिडर्ड एज एग्रीगेट डिमांड. Fine. So as you can see, what is the meaning of aggregate demand? Aggregate demand is a total amount of goods and service demanded in the economy. कंपोनेंट्स इन द इकोनॉमी मतलब एक कंट्री में जितने भी गुड्स एंड कमोडिटीज होते हैं उसको बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड. तो गुड्स एंड सर्विस डिमांडेड इन द इकोनॉमी, उसके कंपोनेंट्स क्या है, क्या क्या चीजें आएंगी उसमें? डिजायर डिमांड और इफेक्टिव डिमांड, जिसको एक्सेंट और एक्सपोज भी बोलते हैं. अगर हम लोग 4 सेक्टर, बिकॉज हमारे सीबीएसई के सिलेबस में 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी तो है नहीं. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने पढ़ा था, देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म. बट अगर हम लोग अगर पूरे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो पूरे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा डिमांड क्या कहलाएगा? पूरा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा डिमांड होता है दिस. AD is equal to C plus I plus G plus X minus M, and this is applicable in case of 4 sector economy. This is applicable in case of 4 sector economy, जहाँ पे गवर्नमेंट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, हाउस होल्ड फर्म सब कोई एग्जिस्ट करता है. वहाँ पे उसमें AD, उस इकोनॉमी में हमारा AD टोटल डिमांड क्या होगा? C plus I plus G plus X minus M. Now what is C stands for? C stands for consumption, I stands for investment, G stands for government, and X minus M obviously export minus import. बट वी आर इन द सिलेबस ऑफ CBSE. CBSE में हमारा डिमांड एक्चुअल में होता है 2 सेक्टर्स इकोनॉमी में, वेयर वी विल राइट AD इज इक्वल टू C प्लस I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. क्योंकि हम लोग 2 सेक्टर्स मॉडल पढ़ रहे हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म, तो उसमें हमारा C प्लस I ही होगा.
तो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? पूरे कंट्री के इकोनॉमी के डिमांड को जो ऐड करेंगे उसको बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। अगर उसका कॉम्पोनेंट्स पूछा जाएगा तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इन ऑल द 4 सेक्टर्स। व्हेन इट इज अबाउट 2 सेक्टर्स इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म, देन एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। सो मैम एग्जाम में क्या लिखेंगे? सबसे पहले यू विल राइट एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, यू विल मेंशन इन 2 सेक्टर्स इकोनॉमी, इन द सेकेंड लाइन ब्रैकेट में स्टार मार्क देके यू विल राइट एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इन द 4 सेक्टर्स इकोनॉमी। बिकॉज आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, एग्जामिनर के लिए आपको क्लियर कट रखना है कि आपको सब कुछ पता है। फाइन, नेक्स्ट। Now, if you have Sandeep Garg book, I am following the Sandeep Garg because Sandeep Garg is the best for the economics. So if you are following this, you will go to the chapter 7 and the second page of chapter 7 is, you can see this. As you can see, components of aggregate demand. Components of aggregate demand में C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन, जो कि हम लोग कंज्यूम करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ परचेजिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑल दिस थिंग। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो हमारे पीछे खर्चा करती है, रोड बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करती है वो होती है गवर्नमेंट। और एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट होता है। पर इन टू सेक्टर मॉडल में एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। Fine, this is important for MCQ purpose. Now if we'll move ahead, so you will see a diagram of AD and this diagram is very important कि मैम AD का diagram क्या होगा। As we know, AD is equal to C plus I. AD is equal to C plus I. ना यहाँ पे 2 से 3 चीजें समझने की जरूरत है। AD इज इक्वल टू सी प्लस आई, एज यू कैन सी वन डायग्राम। अगर हम इस टेबल को इग्नोर भी करते हैं, इफ विल सिंपली इग्नोर द टेबल, इफ विल फोकस ओनली ऑन द डायग्राम पार्ट। फाइन, अगर हम लोग डायग्राम पार्ट में बात करते हैं तो AD इज इक्वल टू सी प्लस आई। C stands for consumption and I stands for investment. Now, consumption can never be zero. Consumption can never be zero. Why ma'am? Why consumption can never be zero? Because economics में consumption का मतलब खाने के साथ साथ कोई चीज यूज करना भी होता है. If I'm using this pen, if I'm using this tab, if I'm using my smartphone, that means I'm consuming all these goods. फाइन. तो कोई भी चीज को यूज करना, कोई भी चीज को यूज करना या खाना, दैट इज नोन एज कंजम्पशन इन इकोनॉमिक्स. तो कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो इन इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू द केनेशियन थ्योरी. वाई? बिकॉज सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइवल के लिए एक मिनिमम बेसिक खर्चा करना पड़ता है एंड दैट इज वाई कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो. ये हम नहीं बोल रहे, बुक में आपके यही लिखा हुआ है. देखो, कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो. It happened because people need certain basic goods and service to sustain themselves even if income is zero. अभी आप लोग क्लास 12 में हो, अभी आप लोगों का इनकम लेवल कुछ नहीं है, बट यू पीपल आर कंज्यूमिंग समथिंग. क्यों? कैसे? क्योंकि अभी आपके पेरेंट्स हैं, अभी आपके पेरेंट्स टेक केयर कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. बट इवन आपका इनकम जीरो तो भी आपका कंजम्पशन है. तो कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो. अगर जीरो नहीं होगा तो नेगेटिव होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है. तो कंजम्पशन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड दैट इज वाई कंजम्पशन अगर पॉजिटिव होता है तो कंजम्पशन का डायग्राम इट विल नेवर स्टार्ट विद द जीरो एक्सिस. वो यहां से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा. तो कंजम्पशन का ड्राइंग हम बनाएंगे कैसे? कंजम्पशन का ड्राइंग हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि ग्राफ इज इंपॉर्टेंट एंड ग्राफ को करने के लिए अगर हम बना रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ ऐसे बनाएंगे. सी, सॉरी, if this is my x-axis, y-axis and naming is important. Economics में without naming you will get zero. अगर आप नेम नहीं कर रहे हो कि आपने x-axis में क्या मेजर किया है, y-axis में क्या मेजर कर रहे हो, तो आपको जीरो मिलेगा. तो यहाँ पे सपोज इफ आई एम अज्यूमिंग इनकम और यहाँ पर AD इज इक्वल टू C प्लस I, तो माई C विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो. ये कभी भी यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, वो कभी भी वहां से स्टार्ट नहीं होगा. तो कहां से स्टार्ट होगा मैम? ऑलवेज योर C स्टार्ट्स विद द अपर पोर्शन. यहां से दिस इज योर C एंड इट विज ऑलवेज अपवर्ड राइजिंग, क्योंकि हम लोग हमेशा कंजम्पशन को कंटिन्यू रखेंगे एंड दैट इज वाई कंजम्पशन कर्व विल बी लाइक दिस एंड विल नेवर स्टार्ट विद जीरो. जीरो से कभी भी यहां से स्टार्ट, आपका कभी भी यहां से स्टार्ट नहीं होगा.
एम आई क्लियर? तो कंजम्पशन का लाइन हमेशा इट विल बी, कंजम्पशन का लाइन इट ऑलवेज बी फ्रॉम द अपर लेवल और हमेशा वो स्ट्रेट लाइन होगा. इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होगा आपका ऑटोनॉमस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपका इनकम कुछ भी हो, योर इन्वेस्टमेंट विल बी फिक्स्ड. अगर आप 100 रुपया में 20 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 20 रुपीज विल बी फिक्स्ड. इवन इफ योर इनकम इज 200, इवन इफ योर इनकम इज 0, योर इन्वेस्टमेंट विल बी फिक्स्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम. अब हमारा जो फॉर्मूला है AD इज इक्वल टू C प्लस I. तो इफ दिस इज C, इफ दिस इज योर C एंड इफ दिस इज योर I, तो दोनों को ऐड करके मेरा AD ऊपर ही जाएगा. दिस इज माई AD, तो AD इज इक्वल टू C प्लस I. एंड दैट इज वाई माई डायग्राम इज ऑल अबाउट AD का डायग्राम. दिस इज अ डायग्राम ऑफ AD, क्योंकि क्वेश्चन में पूछेगा शो डायग्रामेटिकली, तो डायग्रामेटिकली आपको बनाना बहुत जरूरी है. C हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा, I हमेशा पैरेलल टू X एक्सिस बिकॉज इट विल इंडिकेट द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड AD इज इक्वल टू C प्लस I. कॉपी दिस. So I hope now this figure will be clear to all of you. अब ये फिगर को देखेंगे. दिस I, देखो ये जो I है ये आपका I क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस I will be your autonomous investment. This dotted line will be your C and इन दोनों को ऐड करके इन दोनों जो बीच का डिफरेंस है वो क्या होगा? मेरा इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है. एंड दिस इज माई AD is equal to C plus I. Here in X axis we are measuring income, in the Y axis we are measuring AD. So all these are important. This is a diagram of AD. कभी कभी बोलता है डायग्राम के अकॉर्डिंग शो करने के लिए. Now if the very important points about AD. Important points about AD का मतलब कि अगर हम AD के बारे में फीचर्स बोलते हैं, what are the features of AD, तो what you will write? C. The first point is AD is equal to C plus I in two sector economy. We have already learned. Positive consumption. What is the meaning of positive consumption? Even if your income is 0, your consumption will always be in positive. Your consumption can never be 0. कभी भी आपका कंजम्पशन जीरो नहीं होगा. जीरो नहीं होगा तो नेगेटिव होने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही. अगर इफ यू विल लर्न दिस लाइन तो आपका ये चैप्टर आराम से निकल जाएगा. हम ये नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है. There is always a some minimum level of consumption even the income is 0. It happen because people need certain basic goods and service to sustain themselves even if income is 0. तो कभी भी आपका कंजम्पशन 0 नहीं होगा. फाइन. नेक्स्ट वी हैव, अगर मैं बोलूं स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, क्योंकि स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व हमने कैसे पढ़ा था? लाइक दिस. इफ दिस इज अ स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, तो स्लोप ऑफ अ कंजम्पशन कर्व अपवर्ड, इसको बोलेंगे अपवर्ड, बिकॉज कंजम्पशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम. क्योंकि हम अपना कंजम्पशन, अपना यूसेज, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे हम उसको इनकम को बढ़ाएंगे. फाइन. एंड नेक्स्ट, स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व. व्हाट इज अ स्लोप? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व का लाइन क्या है? इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. देखो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर MCQ पर्पस. इन द डायग्राम AD, consumption curve will be the upward rising because income increases, consumption increases. But in case of investment, investment is parallel to x axis because it is fixed irrespective of their income. आपका income कुछ भी हो, आपका investment will be fixed. Fine. Next, इसके बाद starting point of AD और A curve. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ AD कर्व और C इज इक्वल टू I. ऑब्वियसली आपका AD कर्व कहाँ होगा? इफ दिस इज माई I, इफ दिस इज माई AD, इन दोनों को ऐड करके तभी तो AD होगा ना. सपोज 2, इफ दिस इज 3, तो 5 का ग्राफ तो ऊपर ही बनेगा. सपोज हम इन्वेस्टमेंट को 2 पकड़ रहे हैं, C को 3 पकड़ रहे हैं, 2 प्लस 3, बिकॉज AD इज इक्वल टू C प्लस I. तो अगर हम इन्वेस्टमेंट को 2 पकड़ रहे हैं, कंजम्पशन को 3 पकड़, तो 5 होगा. 5 का ग्राफ तो ऊपर ही होगा ना. समझ में आ रहा है? तो हमेशा वो पॉजिटिव स्लोप में ही रहेगा. नेक्स्ट वी हैव स्लोप ऑफ AD कर्व. एक ही चीज लिखा हुआ है. AD कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप विच इंडिकेटेड एज इनकम इंक्रीजेस, AD एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज. जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा मेरा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करेंगे, कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे, कुछ और भी चीजें इनहैंस करेंगे ही करेंगे. फाइन.
आफ्टर एडी वी हैव एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट सप्लाई डिमांड का अपोजिट होता है सप्लाई. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सप्लाई? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन द मार्केट, जो कि हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि सप्लाई मार्केट में कितना गुड्स अवेलेबल है लोगों के लिए. एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा? टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल इन द इकोनॉमी, नॉट इन द मार्केट, इन द इकोनॉमी. तो एग्रीगेट सप्लाई मतलब जितने भी गुड्स अवेलेबल है, गुड्स आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम. AS इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस. कंजम्पशन बिकॉज हमारा इनकम इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. फाइन, अंडरलाइन कर लेंगे इसका डेफिनेशन को. इफ यू पीपल हैव अ संदीप गर्ग बुक, तो आप लोग यहाँ पे मार्क कर सकते हो. संदीप गर्ग बुक ओपन करके रखेंगे और वहां पे इसको मार्क करेंगे. मार्क दिस लाइन, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, एंड एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस दैट आर प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड. Fine. And y is equal to consumption plus saving. Now what is the meaning of the word saving? Saving का मतलब होता है हम अपने consumption में से, suppose if I am earning 1000 rupees, इस 1000 rupees में से मैंने 700 consume किया, 700 rupees खर्च किया, क्या बचा मेरे पास? 300 rupees. ये 300 will be considered as saving. क्यों करते हैं? फॉर मीटिंग द फ्यूचर इमरजेंसीज. अगर कल मेरे पास कुछ ना बचे तो ये 300 रुपया मेरे काम में आएगा उसको कंज्यूम करने के लिए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोविड में वी हैव सर्वाइव जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स सेविंग. पेरेंट्स का सेविंग किया हुआ था तो हम लोग सर्वाइव कर गए कोविड में. तो सेविंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सेविंग इज अ पार्ट ऑफ योर इनकम. आप अब जितना भी इनकम कर रहे हो उसका कुछ एक पोर्शन आपका सेविंग में जाना चाहिए. फाइन. Now, if we'll talk about the graph of AS, as we know AS is equal to Y, AS is equal to Y मतलब national income. अब अगर ये है तो Y is always a upward rising curve. Y is always a upward rising curve. Why? Because we'll always assume कि मेरा income always increase करेगा. देखो increase हो रहा है, तो it is always at a 45 degree इंक्रीज वाले पॉइंट पे अपवर्ड राइजिंग हम लोग बनाएंगे. फाइन. सो इफ आई से अगर एडी और एएस को मिला दिया जाए तो दिस इज माई एएस, व्हाट इज माई एडी, दिस कुड बी माई एडी. तो व्हाट इज माई इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज माई इक्विलिब्रियम पॉइंट. ये वाला मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल सकते हैं. अगर दोनों का बात किया जाए, इक्विलिब्रियम लेवल जो हम लोग पढ़ेंगे आगे में, इक्विलिब्रियम लेवल बात किया जाए तो इक्विलिब्रियम लेवल कब होता है? व्हेन योर एडी इज इक्वल टू एएस. तो एडी का डायग्राम हम लोग अभी पढ़ कर आए, ऊपर में से नॉर्मल कंजम्पशन कर्व के जैसा, एंड एएस इज 45 डिग्री. तो दोनों जहां मीट करेंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इट इज माई इक्विलिब्रियम पॉइंट. बट आप लोग अलग अलग, अभी हम लोग एडी पढ़े, एएस पढ़े, तो इसके अकॉर्डिंग. टेबल इज नॉट इम्पॉर्टेंट. टेबल आपको जस्ट एज अ क्लियर कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए देता है बुक में, बट इन द एग्जामिनेशन पेपर यू डोंट नीड टू शो और डायग्राम. टेबल शेड्यूल बनाने का जरूरत नहीं है. इफ द एग्रीगेट सप्लाई विल कम, यू विल राइट द डेफिनेशन, द डायग्राम एंड द एक्सप्लेनेशन. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट इज, I hope you people have marked whatever I have marked in the PDF. Now, the most important part of this chapter is consumption function or propensity to consume. Consumption function or propensity to consume. Underline the word propensity to consume और उसके बगल में ऊपर में लिखेंगे willingness to consume. That means consumption करने की इच्छा is propensity to consume. Now, what is the meaning of consumption function? Consumption function, it refers to the functional relationship between consumption and income. क्या बोला मैंने? What is consumption function? Consumption function एक ऐसा function है जो कि relationship बताता है दो चीजों के बीच में. किसके किसके बीच में relationship बताएगा? इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो रिलेशनशिप बताएगा उसको बोलेंगे कंजम्पशन फंक्शन.
याद रहेगा। कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन ऑब्वियसली हमारा कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, इनकम के ऊपर डिपेंड रहता है। तो कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड फंक्शन। तो देखो यहाँ पे एक ये इक्वेशन फंक्शन दिया हुआ है, c इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, c is equal to function of y. Don't get confused with this. Now what is the meaning of c is equal to function of y? Consumption, अच्छा, if I'll ask one question, कंजम्पशन इनकम पर डिपेंड होता है कि इनकम कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड होता है? थिंक, आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन, कंजम्पशन इनकम के ऊपर डिपेंड होता है कि इनकम कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड होता है? थिंक, पॉज दिस वीडियो हियर, थिंक अबाउट इट एंड देन प्रोसीड. ओके, सो आई होप यू पीपल हैव मेड योर आंसर. हमारा कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन आवर इनकम. इनकम डिपेंड नहीं होता कंजम्पशन. ऐसा हम लोग नहीं बोलते कि पहले कंजम्पशन कर लेते हैं फिर कमा लेंगे, पहले खा लेते हैं उसके बाद देखा जाएगा मेरे पास पैसा है कि नहीं. नहीं, जितना पैसा होगा उसके अकॉर्डिंग वी विल कंज्यूम. अगर हमारे पास 100 रुपीज है तो हम लोग 50 रुपए का या 60 रुपए का खाएंगे, बाकी नहीं खाएंगे. अगर 1000 रुपए है तो एक छोटा छोटा रेस्टोरेंट में चले जाएंगे. अगर 10,000 रुपीज है तो एटलीस्ट वी कैन गो टू अ डिसेंट रेस्टोरेंट और एटलीस्ट 3 स्टार कैफे में जाएंगे और अच्छे से खा पी कर आ जाएंगे. तो हमारा कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन आवर इनकम. हमारा इनकम डिपेंड नहीं करता कंजम्पशन की बेटा पहले खा लो उड़ा लो उसके बाद इनकम ऑन कर लेंगे. नहीं, जितना पॉकेट में पैसा रहेगा, जितना चादर रहेगा उतना ही पैर फैलाएंगे. तो जितना मेरे पास पैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम कंज्यूम करेंगे. सो माई कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन माई इनकम. तो दैट इज वाई द इक्वेशन इज कंजम्पशन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई. एम आई क्लियर? कंजम्पशन इज इक्वल टू function and y, and this consumption function has two types, APC and MPC. APC and MPC, sorry, this average propensity to consume and marginal propensity to consume. This has two types. There are two aspects, there are two perspectives of consumption function, APC and MPC. Average propensity to consume, marginal propensity to consume. Now what is the meaning of average propensity to consume? आप अपने इनकम का जितना पोर्शन कंज्यूम करते हो that refers to APC. I repeat, आप अपने इनकम का जितना पोर्शन कंज्यूम करते हो, जितना पोर्शन यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड APC. इफ योर इनकम इज 1000 एंड यू आर यूजिंग 800 ऑन कंजम्पशन, दैट मीन्स योर APC इज 800. तो इसको फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ APC? एज यू कैन सी, C/Y. आप अपने इनकम का जितना पार्ट कंज्यूम करते हो उसको बोलते हैं APC. तो हियर योर C इज 800, योर इनकम इज 1000, योर आंसर विल बी 0.8. दिस 0.8 विल बी योर APC. Am I clear to all of you? Average propensity to consume. आप अपने इनकम का जितना पार्ट कंज्यूम करते हो that is called APC. Fine? I hope this is clear. Next we have, that means 80% आप कंज्यूम कर रहे हो. And what is marginal propensity to consume? Marginal propensity to consume is, marginal word का मतलब होता है extra. What is the meaning of the word marginal? Marginal word का मतलब होता है extra. एक्स्ट्रा इनकम बढ़ने के वजह से जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन करते हैं that is called marginal propensity to consume. I repeat, एक्स्ट्रा इनकम बढ़ने के वजह से जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन करते हैं उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मैम एग्जाम्पल, टेक आउट योर कॉपी एंड राइट. नहीं लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, पहले कॉपी निकालेंगे. सपोज दिस इज माई इनकम, दिस इज माई कंजम्पशन और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे. तो पहले हम 1000 रुपीज ऑन करते थे तो 800 रुपीज कंज्यूम करते थे. इफ माई इनकम इज 1200 नाउ, आई विल कंज्यूम 900. फाइन. सो व्हाट विल बी माई MPC? MPC का मतलब क्या है? MPC का मतलब है इनकम बढ़ने के वजह से जो आपका कंजम्पशन इंक्रीज होता है. हियर नाउ अंडरस्टैंड, पेन डाउन, पहले समझ लेंगे उसके बाद. दिस इज योर इनकम, दिस इज योर कंजम्पशन. ठीक है,
दोनों के बीच में आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि इनकम के बेसिस पे हमारा कंजम्पशन हो रहा है। फाइन। अगर हमको एमपीसी निकालना है, इनकम कितना बढ़ा, मतलब जितना इनकम बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो इनकम जैसे बढ़ेगा, जिस पोर्शन से इनकम बढ़ता है उस पोर्शन से हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। जिस पोर्शन से हमारा इनकम बढ़ता है उस पोर्शन से हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। बट एमपीसी डिफाइन, व्हाट इज एमपीसी? अगर एमपीसी इज द चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम बढ़ने के वजह से जो आपका कंजम्पशन बढ़ता है, दैट इज योर एमपीसी। आई रिपीट, इनकम बढ़ने के वजह से जो आपका कंजम्पशन बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड एमपीसी। यहां पर आपका फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई। व्हाट इज योर चेंज इन सी? आपका कंजम्पशन कितना चेंज हुआ है? इट विल बी 900 to 800। दिख रहा है? 900 to 800, दैट मीन्स 100 रुपीज डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम कितना हुआ है? 1200 to 1000, दैट मीन्स 200। तो 100 डिवाइड बाई 200 इज इक्वल टू 0.5। दिस इज योर एमपीसी। एमपीसी ऑफ व्हाट? एमपीसी एट दिस लेवल, एमपीसी एट सेकेंड लेवल 0.1200 वाले में। बट व्हाट अबाउट दिस मैम? एक सेकेंड, what about this? MPC at the first level is negative because MPC is the change। आप फर्स्ट लेवल में जब 1000 रुपए पहले कमा ही रहे हो तो आप ज्यादा कमा रहे हो कि कम कमा रहे हो, कैसे पता चलेगा? UT1 आप लोग का एग्जाम होता है, फर्स्ट टेस्ट, यूनिट टेस्ट 1 और प्री टेस्ट 1। तो अगर यूनिट टेस्ट 1 में आपका जो भी मार्क्स आता है तो आप उसमें अपने आप को कंपेयर नहीं कर पाओगे, आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाओगे कि आपने अच्छा परफॉर्म किया कि खराब परफॉर्म किया, क्योंकि फर्स्ट है। आप कंपेयर किससे करेंगे? बट इन हाफ ईयरली एग्जाम और इन UT2 एग्जाम यू विल कंपेयर योरसेल्फ कि नहीं, मैंने पिछले बार से इस बार अच्छा किया, मैंने पिछले बार से इस बार और खराब कर दिया। तो दैट इज MPC at first level we cannot measure, but MPC at second level we can measure. Fine. So MPC at this is 0.5. So should I do now? तो इसका change in C by change in Y, that is 900 minus 800 divided by 1200 minus 1000 is equal to 100 by 200 is equal to 0.5. This is your MPC. Kindly copy. अच्छा, if I'll say a few important points about APC, average propensity to consume can never be zero। अभी हम लोग पढ़ कर आए, consumption can never be zero, consumption can never be zero। तो अगर जीरो नहीं हो तो नेगेटिव भी नहीं होगा, consumption is always positive। फाइन। तो अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एपीसी जो आपको पॉइंट दिख रहा है, दिस होल टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू पर्पस। सीबीएसई का बहुत फेवरेट टॉपिक है कि उसको कैसे ये सब चीज को आगे देना है। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपीसी। क्या है सबसे पहला पॉइंट? APC is more than 1। Obviously, obvious सा बात है। Consumption can be more than 1। Yes। कैसे? आप 1000 रुपया कमा रहे हो तो क्या आप 1200 रुपया खा सकते हो? हाँ, क्योंकि जब मेरा इनकम जीरो भी होता है तो भी हम कंज्यूम करते ही है। हो सकता है कि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब नॉट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बट आपका बेसिक नेसेसिटी ही इतना है कि आपका वो 1000 रुपीज भी काम नहीं कर रहा। मे बी आपको नया नया जॉब मिला हो तो ये तो 1000 रुपीज है, 1200 रुपया कंजम्पशन कर रहे हैं। इट इज पॉसिबल। तो नॉट इन एवरी केस बट इट इज पॉसिबल कि हाँ एपीसी कैन बी मोर देन 1। एपीसी इज मोर देन 1, कैन बी मोर देन 1। एपीसी इज इक्वल टू 1। हाँ, हो सकता है हम 1000 रुपया कमाते हैं, 1000 रुपया पूरा का पूरा खा जाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अच्छा, आप यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे फॉर योर रिविजन पर्पस? एपीसी इज मोर देन 1, इसके बगल में ओपन करेंगे ब्रैकेट और यहाँ पे लिखेंगे 1000 रुपीज कंजम्पशन, 1000 रुपीज में 1200 रुपया खा रहे हैं। एपीसी इज इक्वल टू 1 में क्या लिखेंगे? 1000 रुपीज में 1000 रुपीज खा रहे हैं। और एपीसी इज लेस देन 1 में क्या लिखेंगे? व्हेन एपीसी इज लेस देन 1, क्वेश्चन पूछेगा आपका कंजम्पशन कब 1 से कम होगा?
जब आप 1000 रुपीज कमा रहे हो और 800 रुपया ही खा रहे हो तो उसको बोलेंगे एपीसी इज लेस देन 1 बिकॉज वाई व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एपीसी सी बाई वाई। अब आप इन तीनों में सी बाई वाई निकालना, देखना इसका आंसर हमेशा 1 से ज्यादा आएगा, इज इक्वल टू 1 आएगा और ये लेस देन 1 आएगा। चेक कर लेना। नाउ APC fall with increase in income. This is very important. Mark it as important. APC fall with increase in income. What is the meaning of APC fall with increase in income? आपका कंजम्पशन का जो परसेंटेज होता है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन का परसेंटेज कम होगा। मैम क्यों? क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल भाई पूरा होते जा रहा है। आप एक टाइम पे एक ऐसा स्टेज आएगा आपके पास इतना पैसा होगा, आपने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया होगा। लाइक सपोज इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ अंबानी। अंबानी के पास आज इतना पैसा है कि आज उसको कंजम्पशन ऐसा कोई चीज नहीं है कि जिसने उसने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। तो उसका एपीसी आप कुछ भी निकाल लो और उसका इनकम इंक्रीज होने की वजह से उसका कंजम्पशन अब एकदम ही वो नेग्लिजिबल होगा क्योंकि उसने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। तो एपीसी फॉल, आपका कंजम्पशन गिरता है विद इन इंक्रीज इन इनकम। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना बाबा कि मेरा इनकम ज्यादा है तो हम रोटी ज्यादा खाएंगे, इनकम ज्यादा है तो अब हम नमक ज्यादा खाएंगे, इनकम ज्यादा तो हम मेडिसिन ज्यादा खाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, लग्जरियस आइटम होता है, एक पॉइंट पे आता है आप लग्जरियस, आपके पास आईफोन है, आपने फॉरेन ट्रिप भी कर लिया, आपके पास प्राइवेट जेट है, आपने सब कुछ कर लिया, फिर भी इनकम हो रहा है तो क्या होगा? तब आप ऑब्वियसली उस टाइम पे स्टॉप हो जाते कि आपने सब कुछ तो कर लिया, नाउ यू आर क्रिएटिंग योर एसेट नाउ। तो उस टाइम पे बोलते हैं योर एपीसी फॉल विद इंक्रीज इन इनकम। याद रहेगा। एपीसी कैन नेवर बी जीरो, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। एपीसी कैन नेवर बी जीरो, तो यस एपीसी कैन नेवर बी जीरो बिकॉज सस्टेन करने के लिए, सर्वाइवल के लिए आपको कुछ ना कुछ इनकम की जरूरत होती है। एमपीसी हमने अभी पढ़ लिया, उसका फॉर्मूला भी हमने अभी पढ़ लिया, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन वाई। आइए उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे बुक में ही। वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 and 1। एमपीसी कैन नेवर बी 0 एंड एमपीसी कैन नेवर बी 1। वाई? एमपीसी मतलब जितना आपका इनकम बढ़ेगा उतना आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। अगर आपको याद होगा, अगर आपने कॉपी में लिखा होगा, देखो कॉपी में आपने एग्जाम्पल क्या लिखा था? कॉपी में आपने एग्जाम्पल लिखा था 1000 रुपीज अर्न कर रहे तो 800 रुपया खा रहे हैं, 1200 रुपया अर्न कर रहे तो सिर्फ 900 रुपया खा रहे हैं। इस लाइन का मतलब क्या है? यू एक्सप्लेन मी द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट? इफ दिस इज योर वाई, अगर ये आपका वाई है और ये आपका कंजम्पशन है तो आपका सेविंग भी होगा। सेविंग इस स्टेज में 200 है और इसमें 300 है। बट व्हाट डज इट मीन? अगर आपने इनकम और अगर मैं इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बोलूं, क्या आपको ये दिख रहा है? जिस लेवल से मेरा इनकम इंक्रीज हो रहा है उस लेवल से मेरा कंजम्पशन इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्या बोला मैंने? जिस लेवल से मेरा इनकम इंक्रीज हो रहा है उस लेवल से मेरा कंजम्पशन इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा तो उसके पीछे रीजन होगा, क्योंकि एक नॉर्मल रैशनल इंसान अगर उसका इनकम बढ़ता है तो अपना कंजम्पशन तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, बट नॉट 100%। उसका इनकम बढ़ा है 200 रुपए से, ये 200 रुपए में वो सेविंग भी करेगा और वो कंजम्पशन भी करेगा। तो दिस इज अ डिसीजन ऑफ अ रैशनल कंज्यूमर कि वो अपना बढ़ा हुआ इनकम इन सेविंग में भी डालेगा और कंजम्पशन भी करेगा। पूरा का पूरा 200 रुपया वो कंज्यूम नहीं करेगा या पूरा का पूरा 200 रुपया वो सेव नहीं करेगा, वो कुछ सेव करेगा कुछ कंज्यूम करेगा। एंड दैट इज वाई एमपीसी कैन नेवर बी 1। आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नेवर बी 1 और इट कैन नेवर बी 0, क्योंकि कुछ ना कुछ कंजम्पशन हम करेंगे नहीं बाबा। इसीलिए तो आप देखो 1000 से 1200 हो रहा, 200 रुपया इनकम बढ़ रहा आपका, बट आपका कंजम्पशन सिर्फ 100 रुपया बढ़ रहा है। क्यों भाई? 100 रुपया, देखो अगर आप नोटिस करोगे 100 रुपया आपका सेविंग में इंक्रीज हो गया। पहले आप 200 रुपया सेव करते थे, अब आप 300 रुपया सेव कर रहे हो 1200 रुपया इनकम पर। तो दैट इज वाई आपने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन सेविंग पे भी दिया है। Am I clear? This is important, all these things. The value of MPC varies between 0 and Y. And the most important point is MPC of poor is more than that of rich. Why? Why is it so? MPC of poor, marginal propensity to consume जो है वो poor का, हम लोग अगर मैं अपना एग्जाम्पल बोलूँ, मैं तो सबसे गरीब हूँ,
तो अगर ये पुअर का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू ये ज्यादा होगा, और जो रिच है, जो अंबानी है, उसका कम होगा, क्योंकि अंबानी का भाई सारा कंजम्पशन कैपेबिलिटी तो खत्म हो चुका है, उसने तो सब चीज एक्सपीरियंस कर ही लिया है, उसने सब कुछ, उसके पास सब क्या नहीं है उसके पास, तो अब उसका इनकम बढ़ेगा तो वो कंजम्पशन किस पे करेगा, सब चीज तो है उसके पास। बट अगर वही हम लोग, आज मेरे पास पैसा आएगा तो सबसे पहले हम गाड़ी खरीदेंगे, हम घर बनाएंगे, हम लग्जरियस आइटम ब्रांडेड बैग्स यूज करेंगे, फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे, सो ये मेरा कंजम्पशन बढ़ाएगा, तो ऑब्वियसली मेरा मार्जिनल एमपीसी जो है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू द रिच। रिच वाला कम होता है क्योंकि उसने सब कुछ तो कर लिया है, वो और किस पे खर्च करेगा, तो एमपीसी ऑफ रिच इज लेस एंड एमपीसी ऑफ पुअर इज हाई। क्लियर? ज्यादा हो गया ना? आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, कुछ ज्यादा हो रहा है, बट कुछ नहीं कर सकते बेटा, आप पूरे साल नहीं पढ़े हो तो लास्ट के कुछ घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे ना, तो टॉलरेट करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज एमपीसी फॉल विथ सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। आपका एमपीसी भी गिरता है जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा। जो भी मैंने बताया कि आपका इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन का कैपेसिटी भी एक टाइम के बाद कम होने लगता है, क्योंकि आपने सब कुछ तो एक्सपीरियंस कर ही लिया, तो आपका एमपीसी कम होता जाएगा। फाइन। डिफरेंस बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी इज इंपॉर्टेंट, तो वो करेंगे नाउ। कंजम्पशन फंक्शन तो पढ़ लिया, कंजम्पशन फंक्शन का अपोजिट होता है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन इज प्रोपेंसिटी टू सेव, आपको कितना सेव करने की इच्छा है, विलिंगनेस टू सेव। And what is saving function? It shows a functional relationship between saving and function. Sorry, it shows a functional relationship between income and saving. I'm so sorry, my bad. What is saving function? Saving function shows the relationship between इनकम एंड सेविंग। इनकम और सेविंग के बीच में जो रिलेशनशिप बताएंगे उसको सेविंग फंक्शन बोलेंगे। तो यहां पर होगा s इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। देखो s इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बिकॉज योर सेविंग इज टोटली एंड टोटली डिपेंडेंट ऑन योर इनकम। एम आई क्लियर? मार्क कर लेंगे। अब यहां पे देखो ये वाला पॉइंट। नाउ व्हाट दिस पिक्चर डिफाइन, ये पिक्चर क्या डिफाइन कर रहा है? एज यू कैन सी यहां पर आपका जो लाइन बना हुआ है, दिस इज योर x, दिस इज योर y। फाइन। यहाँ पे आपका जो सेविंग का लाइन है वो नीचे से स्टार्ट हो रहा है। इफ यू विल सी योर सेविंग लाइन स्टार्ट फ्रॉम हियर। वाई योर सेविंग लाइन स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव? क्यों ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि योर कंजम्पशन इज पॉजिटिव इवन इफ योर इनकम इज जीरो। जब आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हो तो भी तो आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो। बाबा इसका ऐसे मतलब like this. Why your saving is negative at the initial stage? Because of this. Suppose if this is your income, this is your consumption, your income is 0, you are consuming something. Your income is 10, you consume something. Suppose sorry सी इनकम, कंजम्पशन। अब अगर हम यहाँ पे सेविंग बनाएंगे, इफ आई विल मेक सेविंग हियर, दिस विल बी -20। ऑब्वियसली y इज इक्वल टू c प्लस एस, तो सेविंग निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा y माइनस सी। 10 माइनस 30 -20 अगेन -10, यहाँ पे 0 आ गया। अब अगर मेरा इनकम बढ़ता है, अब अगर मेरा इनकम बढ़ेगा, सपोज इफ दिस बाई 70, ये हो जाएगा 60, इफ दिस इज 100, दिस इज 80, तो इस पॉइंट पर मेरा सेविंग क्या हो जाएगा? दिस इज 10 एंड दिस इज 20। ये दिस इज द ग्राफ। तो योर सेविंग इज नेगेटिव, ये दो स्टेज दिख रहा है, ये नेगेटिव
फिर 0 और फिर पॉजिटिव। इसी चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। पहले ही तो ये कॉपी कर लेंगे आप लोग। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसी पिक्चर को डिफाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम दैट योर सेविंग लाइन विल स्टार्ट विद अ नेगेटिव पॉइंट एंड गो अपवर्ड राइजिंग, बिकॉज इनकम बढ़ेगा तो आपका सेविंग भी बढ़ेगा। इनकम इंक्रीजेस, सेविंग इंक्रीजेस, एंड दैट इज वाई आपका देखो वो नीचे से बढ़ रहा है, अपवर्ड राइजिंग स्लोप है। तो अगर वो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, ये ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे आपका इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, सेविंग इज 0, और इसके बाद से इसको बोलते हैं सरप्लस सेविंग। क्या बोलते हैं? सरप्लस सेविंग। फाइन, चलो ये हो गया सेविंग। इसका भी 2 पॉइंट है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव? द सेम एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आप अपने इनकम का जितना पोर्शन सेव करना चाहते हो, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। और आप अपने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इनकम बढ़ने के वजह से जो आपका सेविंग बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इनकम बढ़ने के वजह से अगर आपका सेविंग बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। फाइन, तो यहां पे देखिए, दिस इज द डायग्राम, दिस इज अ फिगर एपीएस, एस इज इक्वल टू वाई, दिस इज अ फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू वाई, देन वी हैव एमपीएस, definition is also given, change in S by change in Y. Fine, and then we have यहाँ तक change in S by change in Y. Clear? Marked everything? अच्छा, important point about APS पढ़ना तो जरूरी है। important point about APS, आइए पढ़ते हैं फटाफट। APS can never be 1 or more than 1. Obviously, आपका सेविंग कभी भी 1 नहीं होगा और 1 से ज्यादा भी नहीं होगा। Why it is never be 1? बिकॉज हम जितना अर्न करेंगे पूरा का पूरा सेव तो नहीं करेंगे। हम 1000 रुपीज अर्न कर रहे हैं और 1000 रुपीज ही सेव कर ले रहे हैं। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नो। हम 1000 रुपीज कमा रहे हैं, 1200 रुपया सेव कर ले रहे हैं। इज इट पॉसिबल? नो। तो 1 और मोर देन 1 होने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। हाँ, एपीएस कैन बी लेसर देन 1। पूरा का पूरा सेव कर लेना इज 1 एंड उससे ज्यादा सेव कर लेना इज मोर देन 1, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एपीएस कैन बी 0, yes, because it can be negative as well. It can be negative or less than 1 and APS rises with rise in income. जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा वैसे मेरा सेविंग भी बढ़ेगा, बट इट इज टोटली अपोजिट इन केस ऑफ कंजम्पशन। वहां पे इनकम बढ़ता था, कंजम्पशन डिक्रीज हो जाता था, यहाँ पे इंक्रीज होगा। फाइन, एक मस्त चीज बताऊं, पेपर में एक चीज छपा हुआ है 90%, 90 to 95%। फटाफट देखते क्या। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस एंड एमपीसी एंड एमपीएस। दिस क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड फॉर 1 mark और फॉर 3 marks. फाइन, सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस एंड एमपीसी एंड एमपीएस। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाउ? एपीसी एंड एपीएस ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। एमपीसी एंड एमपीएस ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। एपीसी एंड एपीएस, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 और एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। इफ द आंसर कुड आस्क फॉर 1 mark, द आंसर विल बी दिस। एपीसी प्लस एपीएस कंजम्पशन, देखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सी प्लस एस इज इक्वल टू वाई। हम अपने इनकम का, आप जितना इनकम ऑन करोगे, आपके इनकम का जितना कंज्यूम आप करते हो उसको एपीसी बोलते हैं। सपोज अगर आपने 1000 कमाया
1000 में से आपने 800 रुपया कंज्यूम किया तो 200 रुपया आपने सेव किया, तो आपका 0.8 क्या होगा? 0.8 इज APC. फाइन. दैट मीन्स आप 80% कंज्यूम कर रहे हैं. तो अगर आप 80% कंज्यूम कर रहे हैं तो सेव कितना परसेंट कर रहे हैं? ऑब्वियसली द रिमेनिंग वन, द 20%. दैट 20% कैसे आएगा? 200 by 1000 is equal to 0.2 and 0.8 plus 0.2 is equal to 1. 0.8 plus 0.2 is equal to 1 is equal to APC plus APS is equal to 1. That is why. एंड सिमिलरली MPC, क्योंकि आप अपने इंक्रीज इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूम करेंगे एंड कुछ पार्ट सेव करेंगे, अभी टेबल से मैंने समझाया था, तो दैट इज वाई APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 और MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 इफ द आंसर कुड आस्क फॉर 1 मार्क. अगर 3 मार्क्स के लिए आएगा तो मैम कैसे लिखेंगे? ये रहा आपका सोल्यूशन. ये रहा, देखो यहाँ पर पहले ऑब्वियसली यू नीड टू, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बाबा. CBSE में प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हो. तो सबसे पहले आप दोनों को कंजम्पशन क्या होता है, सेविंग क्या होता है, एवरेज APC MPC पहले अज्यूम करेंगे और फिर यहाँ पर या तो देखो क्या लिखा हुआ है, सिंस इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव दैट इज C प्लस S इज इक्वल टू Y. ठीक है, हम लोग अज्यूम करेंगे कि डिवाइड Y in both side, divide Y in both side. तो C by Y plus S by Y is equal to Y by Y होगा. तो ये C by Y is equal to APC बोलते हैं और S by Y को APS बोलते हैं, is equal to, और ये कट जाएगा तो बचेगा 1. तो देखो आपका एक आंसर आ गया, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. आप चाहो तो यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, ये रहा. या फिर इफ़ यू आर नोन टू मी, इफ़ यू नो माई नंबर, काइंडली सेंड मी अ टेक्स्ट, आई विल सेंड यू द PDF ऑफ दिस. फाइन. और अगर नहीं, इफ़ यू आर अ नॉन फॉलोअर जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर आप इसको कॉपी कर सकते हैं. एंड नाउ विद द चेंज इन इनकम एंड चेंज इन एक्सपेंडिचर, मतलब MPC प्लस MPS इज इक्वल टू Y, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1. तो ये रहा. तो इसमें सपोज चेंज इन Y इज इक्वल टू चेंज इन C प्लस चेंज इन S, डिवाइड जो करेंगे दोनों साइड, डिवाइड चेंज इन Y इन बोथ साइड. तो चेंज इन Y बाय चेंज इन Y इज इक्वल टू चेंज इन C बाय चेंज इन Y प्लस चेंज इन S बाय चेंज इन Y. ये दोनों कट के 1 इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं MPC और इसको बोलते हैं MPS. हैंस प्रूव्ड. एंड दिस 2 थिंग्स विल बिकम फॉर 3 मार्क्स, 1.5 1.5. एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट. Fine. Okay, so next one, that is investment. Book में when you will see the topic investment, there is a one topic, investment and types of investment. Quickly, what is the meaning of the investment? What is the meaning of the word investment? Investment is एक ऐसा खर्चा जो कि आपके कैपिटल एसेट को क्रिएट करता हो, जो आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को बना रहा हो, आपके नेटवर्थ को इंक्रीज कर रहा हो. सो इन्वेस्टमेंट इज दैट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि आप फ्यूचर के लिए, आप अपना फ्यूचर में जो एसेट क्रिएट कर रहे हो, क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट. इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट. बुक में दिया हुआ संदीप गर्ग और VK ओरी और NCERT जो भी फॉलो करते हो आप उसमें से देख लोगे. इन्वेस्टमेंट आर ऑफ 2 टाइप्स, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट दैट इज टोटली डिपेंड ऑन योर इनकम. इफ योर इनकम इंक्रीजेज योर इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज, इफ योर इनकम डिक्रीजेज योर इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेज. इंड्यूस्ड, टोटली डिपेंड ऑन योर इन्वेस्टमेंट, sorry, totally depend on your income.
Whereas on the other hand, autonomous investment is the investment which is fixed irrespective of their income. अगर आपका इनकम बढ़ रहा है या घट रहा है, आपका इनकम विल बी फिक्स्ड एट वन लेवल. तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का डायग्राम एज यू कैन सी यहाँ पर, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का डायग्राम कैसे बनाएंगे, लाइक दिस. If this is the first one, if my income increases to y1, so my investment will also increase. If my income decreases to y2, my investment decrease. I1, I2, and this is straight line. Fine. Whereas autonomous investment is fixed irrespective of their ये, so it is parallel to the x-axis. अगर आपका इनकम ये हो, चाहे ये हो, योर इन्वेस्टमेंट विल बी फिक्स्ड. फाइन. दिस इज इंड्यूस्ड एंड ऑटोनॉमस. काइंडली कॉपी. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द सेकेंड लास्ट टॉपिक, दैट इज एक्स पोस्ट और एक्स एंटे. ex ante and ex post saving and investment. तो I'll explain only the meaning of ex ante and ex post. ex ante का मतलब होता है जो चीज़ हम एक्चुअल में सोच रहे हैं, मतलब जो चीज़ हम करने की सोचते हैं. प्लानिंग टू सेव इज एक्स सेविंग, प्लानिंग टू इन्वेस्ट इज एक्स इन्वेस्टमेंट. तो एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट. तो एक्स एंटे का मतलब होता है जो चीज़ हम सोचते हैं, प्लानिंग टू डू, दैट इज एक्स एंटे. एंड एक्स पोस्ट इज जो हम एक्चुअल में करते हैं. अगर हम 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं बट एक्चुअल में रियलिटी में आई हैव डन 1200 का इन्वेस्टमेंट, तो दैट 1000 रुपीज़ इज एक्स एंटे एंड 1200 इज एक्स पोस्ट. फाइन. सिमिलरली आपका नेक्स्ट टॉपिक एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एक्स सेविंग पढ़ लोगे बुक से. नेक्स्ट वी हैव फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर the whole economy, the people of the economy is working and at a prevailing wage rate, और जो उनको wage rate चाहिए उसी wage rate पे वो लोग काम कर रहे हैं at the existing wage rate, और जिस wage rate पे उनको चाहिए उसको बोलते हैं full employment, which is totally impractical situation in any country, even in a developed country like USA, Russia, China. वहाँ भी full employment situation is not possible. तो ये बस पढ़ने के लिए है. full employment एक ऐसा situation है जहाँ पे सारे लोग इकोनॉमी के काम कर रहे हैं उनके अपने wage rate पर. वही इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन दैट इज अ मेन प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, वेयर पीपल इज विलिंग टू वर्क बट डू नॉट गेट वर्क. People is willing to work at the existing wage rate but unfortunately they are not getting any work, जिसको बोलते हैं बेरोजगारी. एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का एक अपोजिट होता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स काम कर सकते हैं, काम मिल भी रहा है बट अपने मन से काम नहीं करेंगे. बड़े बाप की औलाद जो बोलते हैं, बड़े बाप की बिगड़ी औलाद जिनको काम करने का कोई शौक नहीं होता है, वो अपने पापा के पैसे पे मौज करेंगे. दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. कि अपने मन से वो बेरोजगार है, उनको कोई फोर्स नहीं किया गया, उनको काम कर सकते हैं, काम मिल भी रहा है बट वो अपने मन से काम नहीं करना चाहते. दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री. पीपल आर विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट बट डू नॉट गेट वर्क एट ऑल. इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट. नाउ विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 8. Important. The name of the chapter is income determination and multiplier. We'll do the quick revision of this topic. इस topic chapter 8 में से numerical तो important है ही, साथ साथ में 3 topics are important: ADAS, SI approach and the investment multiplier. Fine. क्विकली फटाफट रिविजन करते हैं. ADAS तो हम लोग अभी पढ़े. AD is a positive slope, AS is a start from the zero, consumption can never be zero. अच्छा, इक्विलिब्रियम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर ऑल द वेयर AD इज इक्वल टू AS, जहां पर आपका AD और AS मीट करेगा, वेयर AD इज इक्वल टू AS इन एन इकोनॉमी, द इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन और इक्विलिब्रियम पोजिशन. Now, what would happen when AD is more than AS? What would happen when AD is less than AS? तो कोई भी सिचुएशन में, कोई भी इकोनॉमी में ज़्यादा डिमांड होना या ज़्यादा सप्लाई होना इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल.
आपका इकोनॉमी तभी इक्विलिब्रियम होगा, आपका इकोनॉमी तभी बेटर पोजीशन पर होगा जब आपका इकोनॉमी एडी और एएस इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करेगा। नाउ एडी एएस का अगर मैं बात बोलूं तो एडी एएस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस डायग्राम, जो कि अभी मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में एक्सप्लेन आपको किया हुआ है। व्हाट इज दिस डायग्राम? इफ आई एक्सप्लेन दिस डायग्राम विथ माई डायग्राम लाइक दिस, सपोज अगर मैं बनाऊं this is my AD, fine, and what is my Y? this is my income, ठीक है। और इन दोनों का जो पॉइंट होता है that is my equilibrium point, फाइन। ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसके पहले वाला सिचुएशन लाइक द ADAS जो हम लोग क्लास 11 में, ये तो चलो यहाँ का है, क्लास 11 में रिमेम्बर दिस डायग्राम, ये वाला डायग्राम, दिस वन, दिस इज माई S, दिस इज माई D, this situation is demand is greater than supply, this situation is demand is less than supply। तो इस वाले situation में you will need to explain कि why AD is more than AS is not good, why demand is less than supply is not good। Similarly in this situation यहाँ पे आपको explain करना, but you need to explain from the economy point of view and not from the individual perspective point of view। तो now if this is a diagram and if we need to explain this diagram with the help of this ADAS, तो ADAS में आपको 2 से 3 चीजें, द प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन तो चलो हम कर देंगे क्या होगा क्या नहीं। एक्सप्लेनेशन में देर आर 2 अप्रोचेज ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का 2 अप्रोच होता है एंड दैट 2 अप्रोचेज इज फर्स्ट AD इज इक्वल टू AS नंबर 1 एंड नंबर 2 S इज इक्वल टू I अप्रोच। इन दोनों में से कोई एक अप्रोच आएगा ही आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इफ आई गो विथ AD इज इक्वल टू AS, AD AS में फर्स्ट से पहले आपको लिखना है व्हाट इज AD, व्हाट इज AS और AD AS होने से क्या होगा। तो AD AS अगर मीट जहां करेगा उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। नाउ यू नीड टू एक्सप्लेन द बोथ द सिचुएशन एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ AD AS। ये डायग्राम आपको बनाना है, फाइन। नाउ द थिंग इज what would happen, you need to explain these 2 situation as you can see। First is this when AD is more than AS and when AD is less than AS। इसको पढ़ाएंगे नहीं हम, समझाएंगे, समझना, ध्यान से समझना। When demand is greater than supply, क्या होगा? किसी भी इकोनॉमी में जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तब क्या होगा? तब क्या होगा? सब सिचुएशन होगा कि आपका just a second, what would happen when your demand is greater than supply? Demand is greater than supply होने के वजह से जब आपका डिमांड ज्यादा, मार्केट में उतना सप्लाई नहीं है, ऑब्वियसली चीजों का प्राइस बढ़ेगा, चीजों का प्राइस बढ़ेगा तो महंगाई होगा, इट विल लीड टू द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आएगा तो व्हेन प्राइस राइजेस सप्लाई राइजेस। बट हम लोग ये भी पढ़े हैं, लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़े हैं, व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड डिक्रीजेस। तो जब डिमांड ज्यादा है इट विल लीड टू द इन्फ्लेशन विच विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि अच्छी बात नहीं है, सब कोई तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो एडी ज्यादा, डिमांड ज्यादा होने से महंगाई आने की सिचुएशन बहुत ज्यादा हो सकते हैं। When it reaches to a price जहां पे अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, लाइक कोविड के टाइम पे वी हैव एक्सपीरियंस, जब कोविड आया था तो हैंड सैनिटाइजर, मास्क के जो प्राइसेस है वो अप हो जाए, मतलब 70-80 रुपीज का हैंड सैनिटाइजर यू विल गेट एट 110-120, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, और लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो प्राइसेस विल गो अप बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज। अभी जैसे अभी करंट सिचुएशन में बिकॉज ऑफ द एलपीजी जो क्राइसिस चल रहा है बिकॉज ऑफ द ईरान एंड इजराइल वॉर, उसके वजह से एलपीजी का प्राइस अचानक से बढ़ जा रहा है, दूसरे चीजों का सब्सिट्यूट का प्राइस इंक्रीज, उसका डिमांड बढ़ जा रहा है। तो व्हाई वुड दिस हैपन? बिकॉज डिमांड इज मोर एंड द सप्लाई इज लेस, तो प्राइसेस विल राइज, इन्फ्लेशन आएगा, तो सब कोई तो कोप अप नहीं कर पाएगा, तो व्हाट वुड हैपन? लोग सप्लाई करने लगेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा लोग सप्लाई करने लग रहे हैं। अब जब सप्लाई है मार्केट में, अब तो लोग कोई डिमांड करेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट में प्राइस तो ज्यादा हो गया है। प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो हम तो पहले जैसा खरीदे थे अब नहीं खरीद पाएंगे, तो क्या होगा? अब उस पॉइंट पर व्हेन सप्लाई इज मोर देन डिमांड, तो उस सप्लाई भी ज्यादा अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि एट दिस हायर प्राइस पीपल आर नॉट विलिंग टू बाय द प्रोडक्ट,
लोग खरीद नहीं रहे हैं सामान को। जब खरीद नहीं रहे हैं तो आपका इन्वेंट्री, आपका सप्लाई वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, और जब वैसे ही पड़ा रहेगा तो इट विल लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज विच इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। तो डिमांड ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन आएगा, सप्लाई ज्यादा होगा तो गुड्स ज्यादा मार्केट में रहेगा, इट विल लीड टू द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। दोनों ही सिचुएशन अच्छा नहीं है। तो एक प्राइस थोड़ा सा कम होकर मिडिल प्राइस पर आएगा, एट अ प्राइस वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। आपका एकदम ही नीचे नहीं ड्रॉप डाउन हो जाएगा, बिकॉज फिर वापस से महंगाई आने का चांसेस। तो एकदम से ड्रॉप डाउन नहीं होकर बीच में आएगा, वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, एंड आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन वहां पे मीट करेगा। So to writing the approach of ADAS, you need to explain first ADAS का approach, what is ADAS. Second, you need to draw the diagram. ये diagram बनाएंगे, और diagram बनाने के बाद you need to explain these two things. When AD is more than AS and when AD is less than AS. The most important keyword is, it means that the consumer and firms together would be buying more goods than firms are willing to produce. As a result, the planned inventory would fall below the desired level. When AD is इन्वेंट्री कम पड़ गया है, डिमांड इतना ही ज्यादा हो गया है कि इन्वेंट्री कम पड़ गया है। टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू द डिजायर्ड लेवल, फर्म वुड resort the increase in employment and output until the economy is back to the output level. चीजों का सप्लाई बढ़ा देंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देंगे, प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा करके लोगों का डिमांड फुलफिल करेंगे। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हायर प्राइस पे पीपल आर नॉट एबल टू कोप अप विद द प्राइस, तो फिर चीजों को चेंज करेंगे। अब ऐसा सिचुएशन आएगा व्हेन एडी इज लेस देन एएस, जहां पे अब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो क्या होगा? It means that the consumer and firms together will be buying less goods than firms are willing to produce. As a result, the planned inventory would rise. क्योंकि अब तो लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। जब लोग खरीद नहीं रहे हैं तो उसको ऑब्वियसली इन्वेंट्री बढ़ाएगा। To clear the unwanted increase in inventory, firm plan to decrease the unemployment and output until the economy is back. जो क्या करेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट रेट, क्योंकि अब जब प्रोडक्शन ही नहीं करना है तो वर्कर्स रख के क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट कम, आउटपुट कम, at where AD becomes equal to AS and there is no further tendency to change. You need to explain this 2 points to explain the AD-AS approach. Fine. And similarly with this you need to explain the diagram, this diagram. Similarly, S is equal to I approach. S is equal to I approach. Just a second. Similarly, saving investment approach में S is equal to I. तो इस वाली सिचुएशन में भी हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन, हमारा इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम तभी होगा जब व्हेन माई S इज इक्वल टू I, और जब S इज इक्वल टू I है तो दैट मीन्स आपका सेविंग ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं अच्छी बात है? आइए पढ़ते हैं। व्हाट वुड हैपन व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट? जब आपका सेविंग ज्यादा है तब क्या सिचुएशन होगा? सेविंग ज्यादा होने का मतलब पीपल आर नॉट विलिंग टू स्पेंड, पीपल खर्च करना नहीं चाहते हैं, लोग बचाना चाहते हैं। लोग बचाएंगे तो मतलब उनका डिमांड नहीं हो रहा है, डिमांड नहीं हो रहा तो वो सामान नहीं खरीद रहे, सामान मार्केट में ऐसे ही पड़ा हुआ है। योर इन्वेंट्री विल राइज, कंपनी का, इकोनॉमी का इन्वेंट्री बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो ये सिचुएशन अच्छा नहीं, क्योंकि इट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर देंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर देने का मतलब है डिमांड ज्यादा होना, डिमांड ज्यादा हो जाएगा, फिर इट विल लीड टू द इन्फ्लेशन एंड ऑल। दिस सिचुएशन इज ऑल्सो नॉट गुड। तो दोनों के बीच में बैलेंस बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। If planned saving is more than planned investment, it means households are not consuming as much as the firm expected them to. As a result, the inventory rises above the desired level. This is important for MCQ purpose. What would happen when saving is more? Your inventory level will rise. And then if planned saving is less than the planned investment, it means that the household are consuming more and saving less than what the firm expected. Demand ज़्यादा है यहाँ पर, because AD is equal to C plus I, and as a result, planned inventory would fall below the desired
लेवल। आपका आउटपुट यहाँ पर कम हो जाएगा क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं, और यहाँ पे आउटपुट बढ़ जाएगा क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। तो दोनों ही सिचुएशन हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा होगा तो जहाँ पे दोनों इक्वल रहेगा तो ही सिचुएशन बेस्ट है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसका डायग्राम। इसका डायग्राम बनाएंगे कैसे, कॉपी निकालेंगे, डायग्राम बनाएंगे। पेन डाउन, पहले देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद करेंगे, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करेंगे, कोई जल्दी वाला बात नहीं है, पहले देख लेंगे आराम से। और इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज एस और आई को एक्सप्लेन करने के लिए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इज डिराइव फ्रॉम ADAS, बिकॉज सेविंग कम्स फ्रॉम AS एंड इन्वेस्टमेंट कम फ्रॉम द कंजम्पशन। तो दोनों को पहले यहाँ से देखो, फर्स्ट विल ड्रॉ द ADAS वाला पॉइंट। दिस इज माई इनकम, दिस इज माई कंजम्पशन, और ये है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। फाइन। नाउ इफ अगर हम इसी के नीचे से एक्सप्लेन करेंगे, नीचे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अगर हम सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सेविंग तो मेरा नीचे से भी जाता है ना, तो नीचे से अगर उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखो एक सेकेंड, अगर हम इसको नीचे से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले ये दोनों का इक्वल, ये यहाँ पर इसको नीचे टान के लेकर आएंगे, नीचे टान के इसको इक्वल बैठाएंगे, और यहाँ से ही यहाँ पे ऐसे करके दिस इज माई सेविंग, ये फाइन, दिस इज माई सेविंग, क्योंकि आई तो मेरा ऑटोनॉमस है, आई रिपीट, देखो वापस कैसे बना रहे हैं, पहले वाई बनाएंगे, AD बनाएंगे, ठीक है, इन दोनों का इक्वल, फिर नीचे जब बनाएंगे इन्वेस्टमेंट वाला लाइन पर, तो इसी को खींच के नीचे लेकर आएंगे, इसी से जॉइन करेंगे इन्वेस्टमेंट वाला लाइन को, फिर इसी से पकड़ कर यहाँ पे स्केल रख कर इसका सेविंग लाइन बना देंगे। तो आपका ये बन जाएगा, सेविंग लाइन। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट, दिस इज कॉल्ड एक्सेस, दिस इज ब्रेक इवन, जहाँ पे आपका S इज इक्वल टू 0 है, और इस पॉइंट पे देखो आपका, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। फाइन। बुक में भी आपको डायग्राम दिया हुआ है इन फिगर नंबर 8.2। व्हेन यू विल ओपन दिस तो यू विल गेट दिस। आपको क्या लिखना है? एस एंड आई आपका इसका डेफिनेशन लिखना, तो एस और आई का अप्रोच लिखना है, डायग्राम बनाना है, और उस डायग्राम के नीचे में एस क्यू ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, दोनों को एक्सप्लेन कर देना है। यू विल गेट योर मार्क्स विद डायग्राम प्रॉपर। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 8 इज मल्टीप्लायर, कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का नॉर्मली मतलब होता है, अभी तक हम लोग पढ़कर आ रहे हैं कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन माई इनकम। इनकम है तो कंजम्पशन होगा, इनकम है तो सेविंग होगा। बट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिफाइन कि आपके इन्वेस्टमेंट के वजह से आपका इनकम कितना बढ़ता है। जितना इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ेगा, जितना कंपनी इन्वेस्टमेंट करता है या कोई भी इकोनॉमी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट योर इनकम चेंजेस ड्यू टू चेंज इन योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के चेंज होने के वजह से आपका इनकम में जो चेंजेस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब यहाँ पर मैम जैसे रिलायंस, आज रिलायंस अगर इतना बड़ा आदमी बना तो ऑब्वियसली वो अपना इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिए है, इन्वेस्टमेंट के वजह से उनका इनकम आज इंक्रीज हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के चेंज होने के वजह से आपका इनकम में जो चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एंड दैट इज वाई इसको आप डिनोट करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं विद द वर्ड के change in y by change in I। change in y by change in I, आपका इनकम चेंज होगा ड्यू टू चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से आपके इनकम में जो चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे मल्टीप्लाई। कितना टाइम्स, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज होने की वजह से आपका इनकम कितना टाइम्स चेंज हुआ है।
और k का फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, और एक फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1/MPS. Fine. These are the three formulas of multiplier. Multiplier क्या होता है? Multiplier is a ratio of increase in national income due to change in the increase of investment. Multiplier, what is the relationship between, next question लिखेंगे, what is the relationship between multiplier and MPC? If the question will come, what is the relationship between multiplier and MPC? This k is equal to 1/1 minus MPC or 1/MPS, inversely proportional to each other. Multiplier is directly related with MPC. MPC के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, बट इनवर्सली रिलेटेड है विथ MPS. नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. So the maximum value of multiplier is infinity and the minimum value of multiplier is 1. ठीक है, मल्टीप्लायर का मैक्सिमम वैल्यू होगा इन्फिनिटी एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1. हाउ, इसको अभी निकालेंगे, पर इसको कॉपी करेंगे. पहले इसको लिखिए, देन आई विल एक्सप्लेन. ओके, तो वाई हाउ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, एज वी नो द मल्टीप्लायर MPC का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1. अगर मैक्सिमम वैल्यू, अगर MPC का वैल्यू 1 है तो K मल्टीप्लायर का आंसर क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, आया ना? तो 1/1 माइनस 1/0, और एवरीथिंग इज डिवाइड बाई 0 इज infinity, and that is why the maximum value of multiplier is infinity. Copy this. On the other hand, the minimum value of multiplier, अभी हमने क्या पढ़ा? The minimum value of multiplier is 1. ठीक है, तो अगर सपोज इफ MPC इज 0, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम तो 0 होता है क्योंकि हम लोग पढ़ कर आए हैं अभी MPC वेरीज बिटवीन 0 एंड 1, तो मिनिमम वैल्यू 0. तो देखो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, पुट करते हैं वैल्यू 1/1 माइनस 0, 1/1 इज इक्वल टू 1, एंड दैट इज वाई द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी. कॉपी दिस. और इसी के साथ होता है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर 8. Now, so it's been too late now, it's already 1:15 in the midnight. So I hope you people will understand. We'll upload the next part tomorrow, maybe today, because one day is left only. So tomorrow by evening or before 8 p.m. you will get the video of the next chapter and the numerical of this video of chapter excess demand and deficit demand, and the numerical of this video will record tomorrow and then we'll upload tomorrow. You will get before 8 p.m. Thank you so much. Bye.